Hello, Assalamu alaikum, and welcome to mathematics class for standard 6th, chapter 2, whole numbers recapitulation video. Students, in this chapter, I'm going to explain few conceptual points from the chapter whole numbers. Okay, student, so let's begin with the explanation. Student, what are whole numbers? Look at this number line. Here we have some negatives and here we have some positives number, and 0 is a non-negative nor positive number. So students, look at this. All the numbers are here, right? Negatives and positives. As you move the number line this way, you are going to get all the negative numbers. And as you are going to move your numbers this side, you are going to have your positive numbers. So our whole number begins with 0 and then it goes on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and on and on and on. 10, 20, 30, 40, 50. Not this side. These are all negative. We don't have to count them. We are going to go only toward the positives way. Now we go 100, 200, 300, 400, 500 and on and on and on. We come to thousands, then the thousands, 2000s, 3000, 5000, 10,000 and we go on and on and on. That means from 0 if we begin and we go on, the 0 is the smallest whole number. Correct? And if somebody asks you that what is the greatest whole number, you are going to answer infinity, because we are never stopping for the positives answer as well as negative answer. But for whole numbers, the whole numbers are only for the positive ones. So 0 is the smallest, but greatest is infinity. So what are whole numbers, students? All the positive numbers from 0 to infinity are called whole numbers. Now what are successors? To any whole number, if you are going to add 1, and whatever the result you get it, that is the answer number, that number is called the successor. For example, take one number 5 and add 1 to it. Your answer is 6. So what is this? 5 is a whole number, and after adding 6 you get, that is your successor. Let's take one more example of a bigger one, that is 357. Add 1 to it. What you're going to get? Yes, 358. This 357 is the whole number and this 358 is a successor. Now we come to the topic predecessor. What a predecessor? It is something opposite of successor. Here we do the adding of 1 and for predecessor we do the subtraction of 1. That is, when you subtract 1 from any whole number, the answer you get, that is your predecessor. Now look at this. Example is 5 minus 1. You'll get 4. 5 is the whole number and 4 is your predecessor. Now let's take the similar example. 357. Now instead of adding 1, we are subtracting 1. So what answer you are going to get? 356. So 357 is your whole number and 356 is the predecessor. Now look at this. Commutative property. Now we are going to see some of the properties. What is commutative property? A commutative property is going for, that means two numbers are being treated with 4 kinds of operation, that is addition, subtraction, multiplication and division. Okay. Now कम्यूटेटिव में हम सिर्फ 2 ही नंबर लेते हैं. 2 ही नंबर के बीच में या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है. अब वो जो हम आंसर लेकर आते हैं उसे हम लोग एक पैटर्न में सॉल्व करते हैं. उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में सेम आंसर देते हैं. अगर हम लोग उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो चलो हम देखते हैं. हम एडिशन में ऑर्डर चेंज करके देखेंगे. a प्लस बी भी करेंगे और फिर ऑर्डर चेंज कर देंगे, b प्लस a करेंगे. क्या हमारे दोनों आंसर इक्वल आते हैं? Let's see with an example. 4 plus 27 आंसर 31 आया है.
और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी 27 पहले ले लूं, 4 बाद में ले लूं, तभी भी आंसर सेम आया है। यानी हाँ, मैं अगर दोनों वे में ऐड करूं तो आंसर दोनों वे में इक्वल आते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करने पर भी हमारा एडिशन का आंसर चेंज नहीं होता। दैट मीन्स यस, दिस इज गोइंग वैलिड है। अब सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है या नहीं है? इक्वल नहीं होगा। सी हाउ? एग्जाम्पल देखते हैं, 4 माइनस 2 2 आया, लेकिन 2 माइनस 4 एक नेगेटिव आंसर आता है, यानी -2। हम छोटे नंबर में से कभी बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते, और इसीलिए अगर हम करते भी हैं तो हमारा आंसर, हम उल्टा करते हैं ना 4 माइनस 2, लेकिन आंसर नेगेटिव में ही लिखते हैं। ओके, अब हमने ये देख लिया कि 2 इज नॉट इक्वल टू -2, 2 -2 के इक्वल नहीं होता, यानी सब्ट्रैक्शन में हमारे दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आते। विल गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी और b इंटू ए करके देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 4 2 जा 8, अब ऑर्डर चेंज कर दो, 2 4 जा, वो भी 8 आया, दोनों तरफ आंसर सेम आ गए, 8 इज इक्वल टू 8, यानी हाँ, मल्टीप्लीकेशन में हमें दोनों तरफ आंसर सेम मिलते हैं। अब आते हैं डिवीजन के वक्त, a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a, दोनों में आंसर अलग आएगा। लेट्स सी, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 2, 2 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 0.5, दोनों तरफ आंसर नॉट इक्वल। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी दिखाती है सिर्फ एडिशन में और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, और अगर ऑर्डर चेंज करें तो सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आंसर बदल जाते हैं। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, और नॉट क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स गो फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में हम 2 नंबर्स लेते हैं, तो एसोसिएटिव में 3 नंबर्स लेते हैं, यानी 3 का एडिशन होगा, 3 का सब्ट्रैक्शन होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा और 3 का डिवीजन होगा। याद रखिए, जो कम्यूटेटिव के साथ हुआ है वही एसोसिएटिव के साथ भी होगा, यानी कम्यूटेटिव में दोनों आंसर सेम कौन से ऑपरेशंस में आए थे? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरह एसोसिएटिव में भी यही 2 प्रॉपर्टीज जो हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो क्लोज्ड होगी, और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आंसर सेम नहीं आएंगे। ओके, सो लेट्स सी फॉर एडिशन, हम उसके ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। हमने पहले 4 को 27 से मल्टीप्लाई किया और बाद में 5 ऐड किया, तो आंसर आया 31 प्लस 5 दैट इज 36। अब ऑर्डर चेंज करते हैं तो आया है अगेन 27 में 5 प्लस किया तो 32 और 4 ऐड किया 36, दोनों वे में आंसर सेम ही आए हैं, 36 इज इक्वल्स टू 36, यानी ये एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। एज आई सेड कि आंसर सेम नहीं आने वाला है, जो कम्यूटेटिव में हुआ है सेम एसोसिएटिव में होगा। सो लेट्स गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहां पर दोनों आंसर सेम आएंगे। प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 आया। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40, दोनों तरफ आंसर सेम आया है, यानी ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होती है। और डिवीजन में एज आई सेड कि अगर कम्यूटेटिव के लिए भी नॉट क्लोज्ड आया है तो एसोसिएटिव के लिए भी नॉट क्लोज्ड आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ वी गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट मीन्स फ्रॉम अ ब्रैकेट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए हैज बीन डन, यानी ये जो ए है इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स यानी बी और सी के साथ मल्टीपल होगा। ए के साथ मल्टीपल होगा बी, तो ए इंटू बी, ये प्लस की साइन आएगी, और a मल्टीप्लाई बाय सी होगा तो a मल्टीप्लाई बाय सी होगा। a इंटू बी इज ए बी और a इंटू सी इज ए सी। इस तरीके से हमारे आंसर आएंगे। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, a की जगह 4 है, b की जगह 2 है, c की जगह 7 है। अगर ऐसा है तो 4 2 जा मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 7 जा मल्टीप्लाई होगा, 8 प्लस 28 विल गिव यू 36। अब इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास बी और सी के बीच में एडिशन यानी प्लस का साइन है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बट फॉर एडिशन। अब हम जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम होगा a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी, बस एक ही चीज का फर्क आएगा, जहां जहां एडिशन का प्लस है अब वहां वहां सब्ट्रैक्शन का माइनस होगा, ए बी ए सी। अब एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। 4 9 जा मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 7 जा होगा, दैट इज 36। सो 4 9 जा 36 माइनस 4 7 जा 28, 36 में से 28 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 8। अब ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन।
क्योंकि ये माइनस के वाले ब्रैकेट के साथ में मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर एडिशन होता है क्योंकि प्लस के ब्रैकेट के साथ में एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है। सो नाउ विल कम टू एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आप किसी भी होल नंबर के साथ में अगर 0 प्लस करते हैं तो आपका वही होल नंबर आंसर में रिफ्लेक्ट होता है या आता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, 5 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 5, और एक बड़ा नंबर लेते हैं 49 प्लस 0 करें तब भी आंसर 49। आपने देखा कि दोनों टाइम हमारा होल नंबर ही आंसर में आया है, यानी इस 0 को ऐड करने से हमारे क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर बन जाता है। तो ये जो 0 है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम किसी भी होल नंबर्स के साथ में अगर किसी भी होल नंबर्स के साथ में हम 1 मल्टीप्लाई करें तो वही होल नंबर हमारा आंसर में आ जाता है, राइट। तो उस 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, 5 1s are 5। अब 49 1s are 49। आपने देखा कि जो क्वेश्चन था वही आंसर आया है, यानी 1 के वजह से क्वेश्चंस के अंदर आंसर बनने में कोई चेंजेस नहीं होते, इसीलिए इस 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद में हम कुछ सूटेबल अरेंजमेंट करते हैं और नंबर्स को सॉल्व करते हैं थोड़ा क्विकली। यानी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे जिन लास्ट नंबर्स यानी वंस के नंबर्स का सेट बनने पर टेंस बने, हमें वही नंबर सिलेक्ट करने होते हैं। हमेशा इन्हें अरेंजमेंट में हमें ऐसा एक सेट तो दिया ही होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 7 और 3, हमें पता है 7 प्लस 3 10 होगा, क्योंकि 8 प्लस 3 11 होता है, 10 नहीं होता। तो हम ये नहीं, हम ऐसे नंबर सिलेक्ट करें जिनके वंस को ऐड करने पर 10 होता है। 6 और 4 हो सकता है 10, 5 और 5 हो सकता है 10। तो अरेंजमेंट करते वक्त हमें ऐसे वंस को उठाना है जो 10 करे, और हमें उनको अरेंज करना है बाजू बाजू में और उनको ऐड करना है ताकि हमारे जीरोज में आंसर आए, यानी एक होल नंबर्स में, एक कंप्लीट नंबर में आंसर आए। तब हमारा एडिशन थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये जो 100 की प्लेस पर है ये 100 से प्लस हो जाएगा तो 140 की जगह 0 ही है, सो नो चेंज। और लास्ट नंबर 0 में 8 ऐड होगा तो वो 8 आंसर आएगा 1408। तो इस तरीके से हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके हमारे एडिशंस को सिंपल बना सकते हैं। उसी तरह मल्टीपल्स के अरेंजमेंट में भी आप ये देखिए कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 10s या 100s आते हैं, ताकि आपका अरेंजमेंट होने पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर दिए गए हैं 2, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाई 1768 एक बड़ा नंबर है और 50। बट हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें, यानी 52 52 100 हो जाता है। सो हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि 2 को पहले 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 1768 मल्टीप्लाई करेंगे। 250 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। अब हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन कितना सिंपल हो गया, देखिए कोई भी नंबर के साथ में 100 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2 जीरो जो है वो उस नंबर के बाजू में आ जाएंगे, यानी हमारा आंसर आएगा 17680। तो ये हुए कुछ सूटेबल अरेंजमेंट्स और जिसके वजह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल बना सकते हैं। नाउ वी गो फॉर स्टडी ऑफ पैटर्न्स। कुछ नंबर्स के पैटर्न्स हमें दिए गए हैं, उनको देखते हुए बिना कैलकुलेशन के हमें पैटर्न को स्टडी करके डायरेक्ट आंसर लिखना है। यहां पर जिस तरीके से हमें कुछ पैटर्न्स दे दी गई है, राइट। 1 into 8 plus 1 is equals to 9। यहाँ पर 1 के बाजू में नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। यहाँ का नंबर कोई चेंजेस में नहीं आ रहा आफ्टर मल्टीपल। यहाँ पर भी है असेंडिंग ऑर्डर में, प्लस के बाद 1 प्लस के बाद 2 प्लस के बाद 3 प्लस के बाद 4 फिर आएगा इक्वल 9। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर्स के नंबर अरेंज होते जा रहे हैं, 9 8 9 8 7 9 8 7 6 एंड ऑन एंड ऑन। अब हमें क्या करना है, 2 स्टेप्स को लिखना है। ओके ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को स्टडी कर लिया है, अब हम इस पैटर्न को फर्दर 2 स्टेप्स लिखेंगे। दैट इज यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 के बाद में, जिस तरह 2 के बाद 3 ऐड होता चला गया, 4 के बाद 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 नीचे 4 आए, 4 है और 4 के नीचे 5 आएगा। 9 8 7 6 यहाँ पर एक और 5 ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है क्या करना है, अब 5 के बाजू में 6 ऐड हो जाएगा और यहाँ यानी एक सक्सेसर ऐड हो रहा है और एक प्रेडिसेसर बाद में
अटैच किया जा रहा है और ये सारे के सारे सक्सेसेस लिखे जा रहे हैं। इस तरीके से बिना कैलकुलेशन के आप पैटर्न को स्टडी करके लॉजिकली उसकी खाली जगहें यानी फिल इन द ब्लैंक्स या मोर टू स्टेप्स कर सकते हैं। Okay students, so I hope you have followed whole recap of chapter 2 nicely. All the best for your exam. Thank you and have a nice